નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું. હું છું સમીર. માઉન્ટ આબુમાં કોલ્ડ કર્ફ્યુ છે. ઠંડી એટલી જબરજસ્ત છે કે ચારે તરફ સન્નાટો છવાયેલો છે. માઉન્ટ આબુમાં -5 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું અને લઘુત્તમ તાપમાનમાં 1 ડિગ્રીનો વધારો થયો. તો છેલ્લા 7 વર્ષમાં સૌથી વધુ ઠંડી નોંધાઈ માઉન્ટ આબુમાં અને સતત 5 દિવસમાં માઇનસમાં ચાલી રહ્યો છે પારો. ઉત્તરાયણના દિવસે માઉન્ટમાં ઠંડીએ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. સોમવારે -3 ડિગ્રી હતું, મંગળવારે -4 ડિગ્રી તાપમાન હતું અને માઉન્ટના મેદાનમાં બરફની સફેદ ચાદર જોવા મળી રહી છે. -5 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાતા જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. તો જબરદસ્ત ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળી રહ્યો છે. ઠંડીને કારણે કર્ફ્યુ જેવી સ્થિતિ છે. રસ્તાઓ સુમસામ છે. તો બરફની ઠંડી ચાદર ફેલાઈ ગઈ છે. ચારે તરફ બરફ જામી ગયો છે. જે સહેલાણીઓ પહોંચ્યા હતા આબુમાં વેકેશન માણવા માટે, મિની વેકેશન માણવા માટે, શુક્ર, શનિ અને રવિવારનું, અને પ્રવાસીઓ ઠરીને ઠીકરું થઈ ગયા છે. લોકો તાપણું કરી રહ્યા છે ગરમાવો મેળવવા માટે. તો આ માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે આબુનો. माउंट आबू में पिछले 3-4 दिन से कड़ाके की ठंडी पड़ रही है और आप देख रहे हैं गाड़ी के ऊपर इतनी बर्फ जम गई है. मेरे को लगता है कम से कम -4 -5 तक टेम्परेचर होना चाहिए. मुझे लगता है आगे भी और भी बहुत जोरदार ठंडी पड़ेगी क्योंकि नॉर्थ इंडिया में भी स्नोफॉल हो रहा है और माउंट आबू अरवली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है, तो यहाँ पे भी जोरदार बर्फ जम रही है. देखो आप गाड़ी के ऊपर कितनी हार्ड आइस हो गई है एकदम. તો આપ જોઈ રહ્યા છો કે આ દ્રશ્ય બતાવી રહ્યું છે કે કેટલી જબરજસ્ત ઠંડી છે. ચારે તરફ ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળી રહ્યો છે. ઉત્તરાયણનો દિવસ છે. માઉન્ટ આબુ લોકો પહોંચ્યા છે મિની વેકેશન માણવા માટે. ઉત્તરાયણનો પર્વ છે અને -5 ડિગ્રી તાપમાન સાથે 7 વર્ષમાં સૌથી વધુ ઠંડીનો રેકોર્ડ જોવા મળ્યો. કાતિલ ઠંડીનો સામનો કરી રહ્યું છે માઉન્ટ આબુ. તો માઉન્ટ આબુમાં કોલ્ડ કર્ફ્યુ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. તો જે નકલી તળાવ છે તે પણ લગભગ થીજી જવા માટે આવ્યું છે, કારણ કે -5 ડિગ્રીમાં તે બરફ થઈ જતું હોય છે. તો આ પાણી જે સ્થિર જોવા મળી રહ્યું છે તે તેની ઉપરની પરતમાં એ બરફ જામી ગયો છે. જ્યાં નજર કરો ત્યાં કર્ફ્યુ જેવી સ્થિતિ છે. એક પણ વ્યક્તિ જોવા નથી મળી રહ્યું. જે પણ કોઈ રસ્તા ઉપર જાઓ ત્યાં સન્નાટો છવાયેલો છે. તો માઉન્ટ આબુમાં ઠંડીએ જે રેકોર્ડ બનાવ્યો છે, આ સફેદ ચાદર જોવા મળી રહી છે. જમ્મુ કાશ્મીર જવાની જરૂર નથી. રાજસ્થાન પહોંચો અને ત્યાં માઉન્ટ આબુમાં જોવા મળશે ચારે તરફ બરફ જ બરફ. તો આ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે માઉન્ટ આબુમાં, જ્યાં -5 ડિગ્રી તાપમાન જોવા મળ્યું છે. દેખો ત્યાં ઠાર, એટલે કે ઠંડીએ એટલા લોકોને થથરાવી મૂક્યા. ઠંડીથી લોકો એટલા ધ્રુજી ઉઠ્યા કે તેમના હોટલ કે રિસોર્ટની બહાર આવવા માટે કોઈ તૈયાર નથી. તો ચારે તરફ પહાડીઓ છે, લીલાછમ વૃક્ષો છવાયેલા છે અને બીજી બાજુ લોકો જે પહોંચ્યા હતા અને તેમના બરફની ઉપર જે બરફ છવાયેલો હતો તે દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો. આ બંને દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો. એક બાજુ સફેદની ચાદર, બીજી બાજુ રસ્તાઓ સુમસામ જોવા મળી રહ્યા છે. અને છેલ્લા 7 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે ઠંડીએ માઉન્ટ આબુમાં. તો જે પણ કોઈ સહેલાણીઓ પહોંચ્યા હતા ઠંડીની મોસમમાં આહલાદક વાતાવરણ માણવા માટે, તો અહીં જોવા મળે છે માત્ર ને માત્ર કર્ફ્યુ જેવી સ્થિતિ. તો આપણી સાથે જોડાયા છે કિશનસિંહ વાઘવાણી, જોડાયા છે न्यूज़ 18 गुजराती संवाददाता है. किशन सिंह जी, बताइए कैसा माहौल है, जो ठंड किस तरह से पड़ रही है और जो लोग वहां पर पहुंचे थे मिनी वैकेशन के लिए उनकी स्थिति कैसी है? आपके आसपास जो चित्र है वो भी जरा दर्शकों को दिखाइएगा. बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आज माउंट आबू का जो तापमान है वो सर्वाधिक सबसे पिछले 7 दिनों में ठंडा दर्ज हुआ है. यहाँ पर आज -5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जिसका असर आप तस्वीरों में पहले ही देख चुके हैं. हमारे साथ कुछ होटल में खड़े हुए सैलानी भी है. हम उनसे बात करते हैं जो पहली बार यहाँ पर घूमने आए हैं. उन्हें कैसा अनुभव होता है माउंट आबू और कैसा उन्हें महसूस होता है -5 डिग्री का तापमान. आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और कैसा आपको माउंट आबू लग रहा है आज? मैं दमन से आया हूँ. मैं पहले शिमला जाने वाला था, पर हमने फिर माउंट आबू का सोचा और माउंट आबू आके हमें बहुत मजा आया है. आज बोलो. हम लोग आइस में बहुत ज्यादा खेलेंगे. किस तरह का महसूस हो रहा है? बहुत ठंडा. सुबह जब उठे तो आपको कैसा लग रहा था? बहुत मजा. बहुत मजा आ रही थी.
और आज बहुत मस्ती आप बताइए, आप ये ठंड में पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है? क्या फ्रीजर में हाथ डाल दिया आज हाँ, आपने? ऐसा ही लग रहा है। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। जब बर्फ उसको देखनी थी वो देख ली। हम माउंट आबू के स्थानीय पार्षद भी है हमारे साथ नगर पालिका के, जो यहाँ सालों से सर्दी का अनुभव करते आए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। मांगीलाल जी काबरा, वो बताना चाहेंगे उनका अनुभव कैसा है माउंट आबू का, और खास करके यहाँ की सर्दी जो होती है कैसे जमाने वाली होती है, किस तरीके से बर्फ के जो परतें होती है वो स्कूटरों के ऊपर, घास के मैदानों के ऊपर वो जम जाती है। मांगीलाल जी बताइए, किस तरह की ठंड पड़ रही है और क्या सैलानियों को मजा आ रहा है यहाँ पर? पिछले 5-7 दिनों से बहुत ही ठंडी का मौसम बहुत ज़्यादा है और कई वर्षों से -5 डिग्री टेम्परेचर गया है माउंट आबू का। और मैं आपके न्यूज़ 18 के माध्यम से जो भी ये दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे सबसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि माउंट आबू की इस ठंडी का लुत्फ उठाने के लिए माउंट आबू जरूर पधारें। और जो आइस आप देख रहे हैं, इतनी एकदम हार्ड आइस हो गई है, जरूर देखने के लिए आएँ। और माउंट आबू का टेम्परेचर मुझे लगता है कि मनाली और शिमला के लगभग बराबर होगा। बहुत ठंडी है। बिल्कुल, माउंट आबू का जो टेम्परेचर है वो मनाली और शिमला से भी ज्यादा ठंडा रिकॉर्ड किया गया है और आज -5 डिग्री सेल्सियस है, जो कि पिछले 7 सालों से यहाँ पर सर्वाधिक ठंडा दिन रिकॉर्ड हुआ है। जिस तरह से बात की जाए, ये निरंतर तापमान गिर रहा है, तो आने वाले दिनों में ये तापमान और भी नीचे जाने की संभावना अभिव्यक्त की जा रही है। इसी कारण से यहाँ पर अब सैलानियों के थोड़ा आगमन भी शुरू हो चुका है और यही आगमन अब हम आग्रह भी करते हैं कि ये सैलानी देखने जरूर आए। किशन सिंह जी, वहाँ पे जो आसपास जो रिसोर्ट जो होटल्स है, उसमें जो सैलानी जो आते हैं आमतौर पर जो ठंडी की सीजन में, उनकी संख्या बढ़ी हुई या कम हुई है? कोविड की गाइडलाइन के बाद तो ये संख्या काफी कम हो गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे हमने न्यूज 18 पर ये तस्वीरें दिखाई माउंट आबू की, उसके बाद सैलानियों की संख्या आज कुछ नजर जरूर आ रही है। कुछ सैलानी हमें रात में भी दिखाई दिए थे और कुछ आज भी दिखाई दे रहे हैं। जी, और जो आसपास का नज़ारा आप दिखाएंगे तो लोगों को भी हम बता सकते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं न्यूज़ 18 गुजराती, तो बिल्कुल, वो भी मैं लुत्फ आसपास उठा का सकते हैं नजारा इस माहौल आपको का। दिखाना चाहूंगा। आप ये देख रहे हैं, ये घास के मैदान है, ये घास का मैदान है जहाँ पर हमने सुबह भी रिकॉर्डिंग की थी। ये बच्चे हैं, देखो कैसे घास में खेल रहे हैं, ये बर्फ को छू करके महसूस कर रहे हैं। और ये स्थानीय लोग हैं जो ये गार्डन में भी आए थे। और ये एक टेबल है जहाँ पर आइस जम चुकी है। आप देख रहे हो ये बच्चा कैसे उस आइस की प्लेट के ऊपर अपने उंगलियां फेर रहा है, यानी बर्फ को छू करके उन्हें ये महसूस हो रहा है कि हम कहीं शिमला या मनाली, कश्मीर में आ चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शिमला और मनाली में वो आ चुके हैं। तो अगर वहाँ पर अगर कोई पहुँचना चाहता है तो वो आ सकते हैं और इस माहौल का लुत्फ उठा सकते हैं। किशन सिंह जी, आमतौर पर जब ठंडी का माहौल होता है तब इतना -5 डिग्री तापमान पहुंच जाता है। ये 7 साल में बताया जाता है कि 7 साल का रिकॉर्ड टूटा है आबू में। और गुरु शिखर की अगर बात करें तो वहां पर कितना टेम्परेचर होगा? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, -11 और 12 में यहाँ पर -6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। उसके बाद लगातार यहाँ पर -3 या 4 डिग्री ही सेल्सियस दर्ज हुआ है। लेकिन पिछले 7 सालों की बात की जाए तो यहाँ पर -4 या 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया है, जिसका तापमान आज अगर रिकॉर्ड हुआ है तो -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं हम बात करें गुरु शिखर और पर्वतीय पर्यटन स्थल अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, तो वहां पर आज -60 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। किशन सिंह जी, वहाँ पर जो बोटिंग होती है नकीले के जो लेक है, नकीले के, तो वहाँ पर बोटिंग चालू है, उसके ऊपर भी जो बर्फ की जो परत है वो जम गई है? नहीं, बोटिंग बिल्कुल पूरी तरह से चालू है, लेकिन बर्फ की परतें अल सुबह में वहाँ जम जाती है जो 8-9 बजे तक रहती है। उसके बाद वो बोटिंग यथावत शुरू हो जाती है। तो लगभग कितने जो आबू के अंदर जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स होंगे, सभी ये फुल है या उसमें काफ़ी जो कम मात्रा में पाए गए हैं प्रवासी? सैलानियों का आगमन आज से शुरू हुआ है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अब धीरे धीरे सैलानियों की संख्या बढ़ेगी। जहां तक होटल और एसोसिएशन की बात, उनके लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि अब हमारी बुकिंग आना शुरू हुई है, लोग इंक्वायरी भी कर रहे हैं। तो जिस तरह से ठंड का यहाँ प्रकोप बढ़ रहा है, उसको देखते हुए उस बर्फ का आनंद लेने के लिए यहाँ पर सैलानी भी काफ़ी संख्या में पहुँचने लगे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया किशन सिंह जी ये पूरी बातचीत के लिए। तो किशन सिंह વાઘવાણી અમારા સંવાદદાતા તેઓ બતાવી રહ્યા હતા કે ઠંડીની મોસમ જબરદસ્ત છે અને તાપમાન જે છે તે -5 ડિગ્રી પર પહોંચી ગયું છે અને લોકો આ મિની વેકેશનમાં માણવા માટે રાજસ્થાનના એકમાત્ર હિલ સ્ટેશન પર પહોંચતા હોય છે। ભલે ઠંડી ગમે તેટલી વધે પરંતુ જમ્મુ કાશ્મીર કે શિમલા અને મનાલી જેવો માહોલ જો માણવો હોય તો લોકો પહોંચવા લાગતા હોય છે આબુમાં, માઉન્ટ આબુ પર કે જે પહાડીઓ વચ્ચે ઘેરાયેલો આ પ્રદેશ છે અને ગુજરાતથી ખૂબ જ નજીક આવેલું આ એકમાત્ર હિલ સ્ટેશન છે કે જ્યાં જબરદસ્ત ઠંડીનો જે અહેસાસ થતો હોય છે અને લોકો એટલે જ આ મિની વેકેશનને માણવા માટે પહોંચતા હોય છે માઉન્ટ આબુ।